Hello there, welcome. So today we are going to cover the further part of the logarithm, जिसमें we are going to cover what logarithm is. Today we are going to cover up this part. So previously अपन ने देखा कि why do we study logarithm, logarithm होता क्या है, उसी को ब्रीफ में देखा था, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देखा था. अभी अपन उसको अच्छे से देखेंगे, डेफिनेशन के तौर पे बोलो या डिटेल में, if I want to say. Okay, yes, so let's just begin. Okay, logarithm. The logarithm of a number to a given base is the index or the power. The logarithm of a number, logarithm of a number बोल दिया तो मतलब क्या, logarithm ये log, यहाँ पे आ गया वो number, to the base, some base रहेगा, is nothing but equal to index or the power. Index or the power अपन ने बोला था यहाँ पे, ये जैसे कि इसको अपन एक तो इंडेक्स सॉरी नॉट दिस, एक तो इसको इंडेक्स बोलते हैं या तो अपन इसको एक तो अपन इसको इंडेक्स बोलते हैं या तो फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं. बट वी जनरली यूज पावर ओवर हियर, तो इसलिए अपन इसको पावर रेफर नहीं करते हैं. एनीवेज, सो क्या है लॉगरिथम? लॉगरिथम कोई भी नंबर का, एंड रिमेंबर लॉगरिथम इज ए ऑपरेटर. ये क्या है? ऑपरेटर. जस्ट लाइक योर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंटेज एंड दोज, ये जैसे ऑपरेटर है वैसे लॉगरिथम भी तुम्हारा एक ऑपरेटर है. टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर. क्या बोल रहे हो लोग? आई विल रीड इट अगेन कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू बी गिवन टू ए गिवन बेस इज द इंडेक्स और द पावर टू विच यानी क्या, इसको टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर. नंबर मतलब क्या? ये ये हो गया लॉगरिथम. इन अदर वर्ड्स if a to the power x is equal to b, I'll just erase this. If a to the power x is equal to b, where b is greater than 0, mind that in your mind that b should be always greater than 0. यानी क्या कि if I am taking 2 to the power minus 1, then I cannot take the logarithm of this, because ये भी एक कारण है क्योंकि लॉगरिथम एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे ऑपरेट होता है, नेगेटिव नंबर्स पे ऑपरेट नहीं होता है. सो अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो यू नीड टू फर्स्ट डू इट इन दिस वे एंड देन यू हैव टू ऑपरेट द लॉग. In short, whatever your index is, it should be greater than 0. Why? Because index name, sorry, not my index, the value. We are talking about the value, sorry, not about x, we are talking about the b. So the fifth power or nth power or nth power, xth power. यहाँ पे in such case b is what, the xth power of a. So in such case it should be always be positive. क्यों? क्योंकि when I take 3 to the power 3, what I am going to get is 27, and it is positive, it is not negative. It cannot be, it is not possible. So whatever it is, it should be greater than 0. And tell me a number which will give you, जिसके ऊपर अगर मैं रेज करूं उसका पावर, it will give me 0. Not possible. ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी पावर में रेज करूं 0 तो मेरे को आंसर मिलेगा 0. Anything to the power 0 is 1. And it is not possible for us to find the number to which a certain power number is raised so that we can get 0. So इसलिए बोला गया है कि if a to the power x is equal to b, where b is greater than 0 and a is also a positive number, a भी positive number है, then 1, positive number then 1 से बड़ा है, मतलब in short 1 नहीं है exactly, और 0 से बड़ा है. अब 1 क्यों नहीं है? मैं बोलता हूं ये कि अगर तुम्हारा 1 हो गया तो 1 to the power 100 भी क्या होता है? 1 to the power 0 भी क्या होता है? 1 to the power -3 भी क्या होता है? 1. So irrespective of 1 हम बात कर रहे हैं, other than 1 की बात कर रहे हैं. Then the exponent x is called, अब यहां पे बहुत महत्व की बात चल रही है. Then the exponent x is called the logarithm of b to the base a. x को क्या बोला गया है? फिर ये एक्सपोनेंट x को क्या बोला गया है? लॉगरिथम. किसका लॉगरिथम? b का लॉगरिथम. किसके बेस में? a के बेस में. एंड इट इज रिटन एज इन दिस वे. x
equal to log b to the base a. X is equal to log b to the base a. Log b to the base a is nothing but your value or the xth power of a, not xth power of a, sorry, the index of a, and b is your the xth power of a. Xth power of a. My apologies. X is nothing but your index, b is nothing but your xth power of a, and a is nothing but your base. A is nothing but your base. Okay. It is noted that the two statements, okay, a to the power x equal to b and x equal to log a, इसको क्या बोला गया है? एक्सपोनेंट फॉर्म, और आइदर आई वुड से इंडिकल इक्वेशन और indices. Why indices? Because there is an index over here. Okay, and x is equals to is known as the logarithmic form और logarithm form are equivalent statement. बहुत महत्व की बात बोल दी इसने. क्या बोल दिया इन्होंने? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. कौन से? ये दो. आया समझ में? ऑल्सो द नंबर b इन a, जो a और ये b इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन की बात कर रहे हो लोग, जो b a में है या b में है इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ x. इसको बोला जाता है एंटी लॉगरिथम ऑफ इसका, क्योंकि जब ये लॉगरिथम है x का, मैं क्या बोल रहा हूं कि b क्या है? लॉगरिथम है. ओके, किसका? x का. तो x का, तो b का, x का लॉगरिथम कौन है? b है. तो b का x क्या हो गया? एंटी लॉगरिथम टू द बेस a. बेस कभी चेंज नहीं होगा, बेस वही रहेगा. इज रिटर्न एज b इक्वल टू एंटी लॉग x. यहां पे बेस यूज करेंगे क्या? नहीं, यहां पे बेस नहीं यूज करेंगे. वी डू नॉट यूज बेस ओवर हियर. वी जस्ट सिंपली राइट एंटी लॉग ऑफ x. क्यों? क्योंकि वी कंसिडर बेस ओवर हियर, सो वी डू नॉट हैव टू कंसिडर बेस ओवर हियर. ओके, वी डू नॉट हैव टू कंसिडर द बेस ओवर हियर. जैसे कि क्या? इफ 3 to the power 2 इज इक्वल टू 9, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. देन 2 इक्वल टू log 9 to the base 3 इज लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉगरिथमिक फॉर्म यानी क्या कि इफ आई राइट 5 to the power 2 is equal to 25, 5 to the power 2 equal to 25, then its logarithmic form is log of 25 to the base 5 is equal to 2. So logarithm of any number is nothing but index of a particular base. अब लॉगरिथम में आपको कभी कभी वो लोग ऐसा दे देते हैं कि you need to find in general logarithm of 10 या logarithm of 100. So यहाँ पे what will you consider the base? What you will consider the base? There is no such base given to you. So ये तो अपने को अच्छे से पता है कि 10 की पावर 2 is the base. 10 जब बेस अपन लेंगे और उसका जब पावर 2 से रेज करेंगे तब अपने को मिलेगा 100. So this kind of logarithm in which the base is 10, is the logarithm जो आपको यूज करना है. मतलब क्या? हर बार logarithm का बेस 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नहीं रहेगा. वो हर बार वैरी करेगा जैसे जैसे नंबर वैरी करेगा. बट एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया जिसके बेसिस पे लॉगरिथम का टेबल बनाया गया था. जैसे मैंने पिछले सेशन में बोला था कि लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाया गया. तो वो टेबल किसके बेसिस पे बनाया गया? एक कॉमन बेस लेके. एंड द कॉमन बेसिस जो आपको पढ़ने का है, द बेस विच आर कॉमन, विच आर ऑफेंटली यूज्ड, वो पहला है बेस 10 और दूसरा है बेस E. E क्या होता है? E एक नेचुरल इररेशनल नंबर है जिसका आंसर 2.7183 कुछ तो भी है ऐसा. इट इज एन इररेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई, जो कि नेवर एंडिंग है
इट जस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन एक्सक्यूज मी। इसके बेस में होता है, तो जब कभी भी लॉग का बेस अगर ई रहा, तो इन सच केस दिस काइंड ऑफ लॉग इज नोन एज नेचुरल लॉग। क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर के लिए अपन यूज करते हैं लॉग टू द बेस ई। अब ये लॉग टू द बेस ई क्यों रखा गया पता है क्या? क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है, आपके भी ऐसे कभी कभी इवेंट्स होते हैं लाइफ में, आपको रियलाइज होता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स जिसका बेस कॉमन होना चाहिए सबके लिए। अब वो रूल आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब बेस सेम होगा, तब तक ये तो आप रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो लॉगरिथम में भी दो तरीके के बेस सेलेक्ट किए गए, एक बेस 10 बोलो और एक बेस ई बोलो। उन दोनों के बेस के दम पे यहां पे अपन लॉगरिथम को फाइंड आउट करते हैं। सो एक बेस जिसका बेस ई रहेगा, एक लॉग जिसका बेस ई रहेगा, उसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। और जो तुम्हारा बेस जिसका 10 रहेगा उसको जनरली लॉगरिथम ही बोला जाता है, लॉग, जो अपन फॉर्मली यूज करेंगे। अब बेस जिसका 10 होता है, वो 10 इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम अपन यूज करते हैं। व्हाट डेसिमल नंबर सिस्टम इज? 0 to लेके 9 है ना, 0 to लेके 9 या 1 से लेके 10 जैसा भी। उन नंबर्स का लॉगरिथम निकालना, इसलिए बेस 10 यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं log 2 to the base 10, इसका आंसर आता है 0.3010। मतलब क्या? अगर 10 to the power 0.3010 में करूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 2। एग्जैक्टली। और अगर मैं आपको चाहूं, ये भी बोल सकता हूं मैं कि log 32 to the base 10, इसका आंसर क्या आएगा, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द लॉग टेबल। ओके, सो ऐसे समय पे देयर आर 2 लॉग बेसिस, और आपको कौन सा ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट। द फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जब कभी भी आपको ऐसा दे दे वो log 5, इसका आंसर क्या है, तो व्हाट यू विल कंसिडर? बेस एज 10। जब कभी भी आपको वो बेस गिवन नहीं रहेगा तो आपका बेस क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। आपका बेस क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ओके, और इन सच केस आप उसको सॉल्व करेंगे। सो ये था लॉगरिथम। नॉट ऑलवेज द बेस विल बी 3, 2, 4। ऐसे समय पे हर बार आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है, जस्ट सो कि बेस डिफरेंट है, तो हर एक बेस के लिए हर एक लॉग टेबल थोड़ी बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, बेस 10 को लेके लॉग टेबल बना लिया है, और आप अभी आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करो, यानी क्या log 9 to the base 3 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, और फिर बाद में आप लॉग टेबल में उसका आंसर देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, नो डाउट। बट जो टेबल बनाया गया है, जो फॉर्मूलेस बनाए गए, जो आंसर बनाया गया है, वो आंसर्स इनके बेसिस पे बनाया गया है। किनके बेसिस पे? 10 और E के बेसिस पे। तो बेस आर कॉमन, एंड दोज कॉमन बेसिस आर बेस टू द 10 एंड बेस टू द E। ओके, लॉग टू द बेस 10 एंड टू द बेस E। E वाले बेसिस वाले लॉग को बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम, एंड इसको बोला जाता है जनरली लॉग भी, अपन लॉग ही बोलते हैं इसको। जनरल बेस 10 वाले को वी डू नॉट ऐड एनीथिंग स्पेशल। सो ये जो नेचुरल लॉगरिथम है उसमें बेस E आ जाता है, और आपको जो आएगा पढ़ाई में वो आएगा टू द बेस 10। टू द बेस 10 इसका मतलब हो गया सारे डेसिमल नंबर्स के लॉगरिथम निकल रहे हैं। यानी क्या कि डेसिमल नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स हैं उनका लॉगरिथम निकालना है, तो अब अपन बेस 10 यूज करके अपन लॉगरिथम निकाल सकते हैं। इट इज इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द लॉगरिथम। सो not only the base is always 2, 3, 4, but in general अब आपका बेस बन गया है 10। इसका मतलब now you can find the anything, any value of power के लिए आप कोई भी नंबर या इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो जिसका बेस 10 रहेगा। 10 रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा? डेसिमल नंबर रहेगा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा तो क्या 0 to 9 बोलो या 1 to 10 बोलो, उनके बीच में वो बिलोंग करेगा बेस, उनके बीच में वो बेस बिलोंग करेगा। और अब आपका कौन सा बेस है एग्जैक्टली, अब आप उसको फॉलो करके आप आंसर निकालो, अब वो कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वो सब तो आने वाले सेशंस में समझेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इसमें और आगे बढ़ोगे लॉगरिथम की दुनिया में, वैसे वैसे चीजें आपको और क्लियर होते जाएगी।
आज बस आप इतना ध्यान में रखो कि हर बार बेस 2, 3, 4 ना रखते हुए वी आर जनरली यूजिंग द बेस एज 10 विच इंडिकेट्स दैट कि डेसिमल नंबर सिस्टम वालों का लॉग निकल रहा था, मतलब बेस अपना डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि क्या, 0 से 9 बोलो या 1 से 10 बोलो, 0 से 9 बोलो या 1 से 10 बोलो, बट अपन 0 कंसिडर नहीं करते क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी 0। ये पावर 0 है ना, x ले लो यहाँ पे, anything to the power x is always 0, so we do not consider 0 to 9 but we consider it as 1 to 10, क्योंकि 1 से अपन आंसर निकालना चालू करते हैं। अगेन अगर मैं आपको बोलूं तो बेस 1 भी इज इररिलेवेंट, क्योंकि 1 to the power anything is always 1, it doesn't matter कि पावर में क्या आ रहा है। 0 और 1 एक ऐसे नंबर है जिनकी पावर आप कितनी भी बढ़ा लो कुछ मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक 0 इतना पावरफुल नंबर है जिसमें आप एक के बाद एक लगाते जाओ तो सबसे बड़ा नंबर बनते जाता है। सो दे हैव देयर पावर्स and their weaknesses, strength and weaknesses. Anyways, so this was the logarithm. Logarithm होता क्या है? This is what logarithm is. ये base a क्या होगा? Base can be anything, but आपको in general base 10 ही काम में आएगा और उसके बेसिस पे आपकी कैलकुलेशंस होते हैं, उसी के बेसिस पे आपके लॉज बने हैं। लॉगरिथम के 6 से 7 लॉज है, जैसे इंडाइसेस के लॉज थे वैसे 6 से 7 लॉज लॉगरिथम के भी है। वो लॉगरिथम के जो लॉज है वो सिर्फ बेस 10 के लिए ही नहीं बने, वो इन जनरल के लिए बना के रखा है उन्होंने, इन जनरल के लिए बना के रखा है। बट आप जब भी आपकी इसमें पढ़ाई करोगे तो आप जनरली बेस 10 को ही ध्यान में रखे हुए पढ़ोगे, उसको बेस को जनरली 10 रख के ही आप उसको पढ़ोगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉगरिथम। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूँ तो इफ आई टेल यू व्हाट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2, 10, 30 है, सो व्हाट इज द इंडिकल फॉर्म ऑफ दिस? सो 10 to the power 30 is equal to 2। ये गलत है बहुत, पर मैं जस्ट इंडिकल और लॉगरिथम में कन्वर्जन और रिटर्निंग ऐसा मैं लिखने का बस प्रैक्टिस करा रहा हूं यहाँ पे कि इफ आई वांट टू कन्वर्ट इंडिकल टू लॉगरिथम देन व्हाट इट विल बी माय आंसर, 2 to the base 10 equal to 30। नाउ अनदर एग्जांपल, इफ आई वांट टू टेक log of 39, यहाँ पे आ जाता है मेरा log of not 39, log of 898 to the base 39 is equal to 9। सो इसका इंडिकल इक्वेशन क्या रहेगा? इसका इंडिकल इक्वेशन रहेगा 39 टू द पावर 9 इंडेक्स 9 इज इक्वल टू 898। सो ये फिर ये इसकी पावर, मतलब लॉगरिथम में जो आंसर रहता है वो ये बेस का पावर रहता है। लॉगरिथम में जो आंसर मिलता है वो ये बेस का क्या रहता है? पावर रहता है, और ये उसका उतना वैल्यू रहता है, कितना? इसके पावर का इतना वैल्यू हो गया। ये गलत है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ, सो दिस इज व्हाट लॉगरिथम इज। आने वाले सेशंस में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉज ऑफ लॉगरिथम, एंड उसके बाद में अपन उसको सॉल्व भी करेंगे उन्हीं लॉज के थ्रू। अपन अब वो लॉज को इस्तेमाल करके आपको लॉगरिथम सॉल्व करना होता है, अब वो लॉज के इस्तेमाल करके आपको लॉगरिथम सॉल्व करना सीखा जाएगा। आपको मतलब लॉज के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व सर्टन एग्जाम्पल्स और सर्टन थिंग्स यूजिंग लॉगरिथम, सर्टन एग्जाम्पल्स यूजिंग लॉगरिथम। तो वो लॉज है जो अपने को मदद करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉज appropriately. Okay, so yes, that's it from me. Thank you.